Hello, welcome to Rajeshri Chavan classes. Today I will give you question answers of science third lesson properties of natural resources. So this lesson already I have explained. और अगर आप लोगों ने अब तक लेसन का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो लेसन का एक्सप्लेनेशन देख लो, क्योंकि उसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने में भी बहुत ही हेल्प होगा. ओके, सो लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स. Here we have exercise. Fill in the blanks with appropriate term. So here we have given some clues are given here. मतलब हमें यहाँ पे answers provide किए हैं. Only we have to fill those answers in proper place. So first we have the capacity of air to hold moisture depend upon the dash of air. Humidity. So where is it? See here. Humidity is here. Second we have the water does not have a shape but has definite mass and volume. Definite mass and volume. So these answers I have here. I'll show you those again. See? Mass and the water does not have a shape. So here we have shape. In first column we have to write shape, then second density, and then mass. Third question we have, while freezing the dash of water is lowered. While freezing density of water is lowered. So density is your answer. Then we have fourth, dash soil has pH 7, neutral. Neutral soil has, so that is given here. अगर आप देखोगे तो यहाँ क्वेश्चन में भी हमें जो हमने पैराग्राफ रीड किया था इसमें भी वो दिया हुआ है. सो जो टेक्स्ट बुक में हम अगर देखते हैं तो बहुत ही आसानी से जब एक्सप्लेनेशन होता है तो जो एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से सुनोगे, देखोगे लेसन, तो आप लोगों को ये आंसर्स इजीली विदाउट लर्न किए भी रिमाइंड हो जाएंगे. Here we have some two extra questions. Fill in the blanks. Those are the dash pressures is the same in all the direction. Atmospheric pressure. Dash are an effects of the difference in air pressure. Winds. Winds are an effects. Then after we have second question in the textbook, that is why is it so that. तो ऐसा क्यों होता है हमें ये बताना है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस. सो द फर्स्ट आंसर वी हैव हियर, देयर आर मैनी कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस इन द एयर. दे आर इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर. द सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ ईच गैस इज नॉट फेल्ट. द इंडिविजुअल गैसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली. Therefore, the air is said to be the homogeneous mixture. The second question we have, water is a universal solvent. क्यों universal solvent बोलते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें डिजॉल्व होती हैं. The many substances easily dissolve in water. Therefore, water is said to be universal solvent. Then after we have third question, that is there is no alternative to water for cleaning purposes. तो जैसे कोई भी चीज़ क्लीन करनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं? वाटर यूज़ करते हैं. वाटर के बदले कोई दूसरा हम लिक्विड यूज़ नहीं कर सकते हैं. सो व्हाई दिस सो? सो मैनी सब्सटेंसेस कैन डिसॉल्व इन वाटर. therefore for bathing, cleaning utensils and washing clothes, water become very useful solvent. It is cheap, easily available remedy for cleaning purposes. मतलब ये easily available भी हो जाता है और इससे हम क्या कर सकते हैं, ये सॉल्वेंट है, कोई भी चीज़ में डिजॉल्व होने वाली चीज़ होती है तो ये सॉल्वेंट है, मतलब एक टाइप का लिक्विड है, इसीलिए हम वाटर को यूज़ करते हैं. Therefore it is said that there is no alternative to water for cleaning purposes. और एक चीज़ है वाटर को क्या है, कोई भी टाइप का
ऑर्डर नहीं होता है, मतलब स्मेल नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है, इसीलिए वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग पर्पस के लिए। देन आफ्टर दैट one more question I have here. This is very important. The earth's surface remains warm. The energy from the sun is received by the earth. This energy is reflected by the earth in the form of heat. However, some constituents of air such as water vapor, carbon dioxide absorb a part of this heat. Since air surrounds the earth, since the air surrounds the earth, this heat keeps earth surface warm. तो जो अर्थ के अराउंड में सरफेस में जो एयर है वो क्या करता है, अर्थ को फिर वार्म रखता है, गर्म रखता है। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वी हैव, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था वो, क्योंकि यहाँ पे 3 है, मैंने ये आप लोगों को एक्स्ट्रा बताया है। व्हाट विल हैपन इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीजेस? So we'll see answer. When the amount of water vapor increases in the air, the humidity rises. मतलब humidity बढ़ती है, the air become humid. Then second question we have, यही same question दिया है, because star वाले जो होते हैं वो textual question होते हैं। The only one crop is grown repeatedly in the soil. अगर एक ही टाइप का हम क्या करते हैं, क्रॉप अगर ग्रो करते हैं तो क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। सो इफ द सेम क्रॉप इज ग्रोन अगेन एंड अगेन, इट्स टेक्सचर डिस्टर्ब्स एंड द फर्टिलिटी इज लोअर्ड. द सॉइल डज नॉट सपोर्ट द कल्टिवेशंस एंड द क्रॉप्स विल नॉट गिव प्रॉपर यील्ड. मतलब क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं होंगे। हियर ऑल्सो वी हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन में। So what is that? When rays of light falls on minute particles in the air. जब जो रेज होते हैं, लाइट के रेज होते हैं, वो पार्टिकल्स के ऊपर फॉल होते हैं तो क्या होता है, द लाइट शोज द स्कैटरिंग इफेक्ट. मतलब जो लाइट है वो स्कैटर्ड होती है, फैलती है. स्कैटरिंग इफेक्ट्स द माइन्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर स्प्रेड्स द लाइट इन ऑल डायरेक्शन. Then we have fourth question, that is with whom should I pair up. मतलब ये किसके साथ में जोड़ी बना सकते हैं. तो यहाँ पर है एयर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वाटर, एक्सक्रेशन, सॉइल, प्लास्टिसिटी. So here I can see again those answers we have here. See here are given, these are the proper answers. तो आप लोग ये answers को note कर लो, या you can just give the matching in your textbook. Then after we have true false. State whether the following statements are true or false. तो हमें सिर्फ देखना है true और false है, इसे राइट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, नहीं तो कभी कभी होता है एंड करेक्ट द स्टेटमेंट. अगर ये प्रॉपर नहीं है तो करेक्ट करना है. सो फर्स्ट है सैंडी सॉइल हैज़ लो कैपेसिटी फॉर होल्डिंग वाटर. तो सैंडी सॉइल है, ये पूरा मैंने पार्ट जो है टेक्स्ट बुक में जब लेसन में एक्सप्लेन कर रही थी मैंने पूरा डिटेल में दिया हुआ है. मतलब आप लोगों को देखते ही आंसर पता चलना चाहिए, इतना बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. सो दैट इज ट्रू. देन द सी वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फॉल्स. सो दिस आंसर आई विल शो यू. सो हियर इन माई बुक आई हैव दोज आंसर्स. द सैंडी सॉइल हैज कैपेसिटी, लो कैपेसिटी फॉर होल्डिंग वाटर, दैट इज ट्रू. देन यहाँ पर देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और ट्रू और फॉल्स. तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन भी दिए हैं, मतलब क्यों फॉल्स है तो क्या है उसका रीज़न ये भी दिया है एक्स्ट्रा, इसलिए मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा रही हूँ. द सी वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज फॉल्स. द सी वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देन आफ्टर वी हैव थर्ड क्वेश्चन, द सब्सटेंसेज इन विच अ सॉल्यूट डिजॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट. ट्रू. The pressure exerted by air is called the atmospheric pressure, that is also true. Then fifth और sixth यहाँ पे एक्स्ट्रा है क्वेश्चंस, ये भी रीड करेंगे. The atmospheric pressure at sea level is about 1,01,400 newtons per square meter. So that is also true. And the sixth is the level of humidity is same everywhere.
falls. The level of humidity is different in different places. So here we have one activity, that is explain the picture in your own words. तो अभी ये पिक्चर देख के आपको क्या पता चलेगा, जब अगर आप एक्सप्लेनेशन देखोगे, जो वाटर का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था वो पार्ट अगर आप देखते हो तो आप लोगों को डिटेल में अच्छे से पता चल जाएगा। जब वाटर आइस में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे दैट आंसर इन फिगर। तो एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं अभी। इन फिगर ए वाटर इज सीन इन द क्रीवाइज ओवर अ लैंड सरफेस। तो पानी यहाँ पे अंदर लैंड सरफेस के अंदर है। दिस वाटर इज इन द लिक्विड फॉर्म। ये कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है। इन फिगर बी द सेम वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड आइस। तो अब ये क्या हो गया है, जो वाटर फॉर्म में था यहाँ पर वो अभी सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब सॉलिड बन गया है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर कितना पतला दिखाई दे रहा है एंड हियर उसका हमें शेप बड़ा दिख रहा है। एज द टेम्परेचर इज डिक्रीजेस द वाटर इज फ्रीजिंग। और टेम्परेचर यहाँ पे लो हो गया है, इसीलिए क्या हुआ है, ये लिक्विड से सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हुआ है, कन्वर्ट हुआ है। सिंस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आइस दैट मीन्स द टेम्परेचर इज लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस। और जब भी 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर जाता है तो क्या हो रहा है, वहाँ पर आइस वाटर जो है आइस में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। द वाटर हुज टेम्परेचर इज लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस बिकम्स लेस डेंस बट इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो उसका वॉल्यूम जो है, मतलब उसका शेप जो है बढ़ रहा है। द वाटर स्टार्ट्स एक्सपांडिंग विच, एक्सपांडिंग मतलब वो बड़ा हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। एक्सपांडिंग विच इज शोन बाय द एरो इन फिगर बी। ड्यू टू एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर द क्रीवाइस इन फिगर बी नाउ लुक्स बिगर देन द क्रीवाइस इन फिगर ए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ए से बी में जो है इसका शेप जो है क्रीवाइस से ये बिगर दिख रहा है, क्योंकि वो क्या हो गया है, वो एक्सपांड हुआ है, बड़ा हुआ है और उसका क्या हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। इसे हम कहेंगे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। Okay, next we will see question answers. Write the answers to the following questions in your own word. How is light scattered by the air? तो लाइट कैसे स्कैटर्ड होती है एयर की वजह से, इसका आंसर अब देखेंगे। So answer is air consists of mixtures of very fine particles of some gases, dust, smoke and mixtures. When the light falls on the minute particles present in the air, these particles spreads the light in all directions. This is called scattering of light. The second question we have, explain the various properties of water. तो water के properties हमें बताने हैं। So these we have to write compulsory, that is water has following properties: fluidity, coolant, universal solvent, ability to perform body functions, cleaning abilities। तो ये मैं आप लोगों को मेन पॉइंट दे रही हूँ, आप ये एक्स्ट्रा जो है उसे भी पूरा रिवाइज करके लिख सकते हो। देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन, दैट इज व्हाई इज द डेंसिटी ऑफ सी वाटर मोर देन दैट ऑफ रेन वाटर। सो देयर आर मैनी डिजॉल्व्ड सॉल्ट इन द सी वाटर। मतलब सी वाटर में क्या है, सॉल्ट डिजॉल्व किया हुआ है, सॉल्ट डिजॉल्व है मतलब मिक्स हुआ है, एंड देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज मोर देन द रेन वाटर। तो ये भी हमें जो एक्सपेरिमेंट दिया था, जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में दिखाया हुआ है, अगर आप ये एक्सप्लेनेशन का देखोगे वीडियो तो आप लोगों को पता चलेगा कैसे उसका सॉल्टी वाटर का क्या हो रहा है, जो डेंसिटी है वो उससे जो सी वाटर का डेंसिटी है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द सॉल्ट, बिकॉज ऑफ सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन दैट इज टेक्सचुअल में जो दिया है सीक्वेंस में उसी अकॉर्डिंग ले रही हूँ। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर? द गुड सॉइल स्ट्रक्चर रिजल्ट्स अ वेरी good fertility of soil. Structure results in good fertility of soil. When soil is of good quality, the roots get sufficient supply of oxygen. मतलब ऑक्सीजन अच्छे से मिल रहा है
एंड इन सच सॉइल द वाटर ड्रेनेज इज गुड, और वाटर क्या हो रहा है, ड्रेन भी अच्छे से हो जाता है। देन द प्लांट्स ग्रो वेल इन सच सॉइल, तो ऐसे ही सॉइल में प्लांट्स भी बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते हैं, इसीलिए सो दीज आर द इम्पोर्टेंट। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर, तो गुड सॉइल स्ट्रक्चर क्यों होना चाहिए, तो इसके ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आप लिख सकते हो द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द गुड सॉइल स्ट्रक्चर्स आर एज गिवन बिलो, और फिर पॉइंट्स लिख दो, या डायरेक्ट भी आप इसे इस तरह से लिख सकते हो। देन वी हैव व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ सॉइल, यूजेस ऑफ सॉइल। तो फर्स्ट वी हैव द प्लांट कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, प्लास्टिसिटी, और उसके यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है डिटेल में, तो आप ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है उसे भी लिखना है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल टेस्टिंग फॉर द पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ फार्मर्स। सो दैट आंसर वी हैव हियर, जो 10th क्वेश्चन है वो सेम आंसर है जो हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चन F है, उसका ये आंसर है द फार्मर्स वांट अ गुड प्रोड्यूस फ्रॉम हिज क्रॉप, बाय टेस्टिंग द सॉइल ही अंडरस्टैंड द constituents of soil in his farm, color, texture and the proportions of the organic matters in soil is tested by various testing procedures. If there is any deficiency in the soil, that is also found out. The measures to be taken to remove deficiency are also suggested. The pH and the electrical conductivity tests are particularly useful in understanding the characteristics of soil. So ये सब टेस्टिंग जो होता है, इसके वजह से क्या हो रहा है, फार्मर को अब इम्पोर्टेंस पता चलने लगा है कि कौन से सॉइल में हम कैसे प्लांट सो कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन द ट्रांसमिशंस ऑफ साउंड। Air is the medium for a transmission of sound. We are able to perceive the sound due to the air around us. The sound waves travel through the mediums of air and reach us. In absence of sound, we cannot hear the sound. The absence of air आना चाहिए, यहाँ पर sound दिया है तो यहाँ पर आप लिखो air. We cannot hear the sound. Hence, air is most important for transmission of the sound. तो यहाँ पर हम लिखेंगे air, ठीक है, इसे कट करके air लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, दैट इज द लास्ट वन। Why should a glass bottle completely filled with water never be kept in freezer? तो पूरा भरा हुआ पानी का जो ग्लास है हम फ्रीजर में क्यों नहीं रखते हैं? तो अभी हमने जो ये यहाँ पर 6th क्वेश्चन देखा था, इसका जो प्रॉपर्टी है, इसका जो रीजन था वही सेम रीजन है, इसीलिए हम पूरा पानी भरकर नहीं रखते हैं। ड्यू टू द एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इट एक्सपांड्स व्हाइल गेटिंग फ्रोजन। When the temperatures got below 4 degrees Celsius, the density of water start increasing and at the same time the volume increases. Temperatures in freezers is always less than 4 degrees Celsius. This causes expansions of the water. Due to expansion, the bottle may burst और bottle फट सकता है। The bottle is made up of glass. The broken glass pieces may cause harm. Therefore, the glass bottle should not be kept in freezer after completely filling them. तो कभी भी पूरा ग्लास भरकर नहीं रखना है, और अगर आप पूरा ग्लास भरकर रखते हो तो उसमें थोड़ा सा हमें क्या करना है, गैप छोड़ना है, पानी का थोड़ा लेवल नीचे रखना है। बॉटल्स भी आप लोगों को कंप्लीट भर के फ्रीजर में, कोई कोई रखते हैं फ्रीजर में आइस बनाने के लिए बॉटल पूरा पानी भरा हुआ अंदर डाल देते हैं, वो भी करना बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, वो देखेंगे बॉटल में बर्स्ट और फट सकते हैं, इसीलिए। So children, we have completed 3rd lesson. All question answers completely we have done. I have explained you. If you like this, you can share with your friends so they can also
प्रैक्टिस देयर क्वेश्चन आंसर्स। उनके पास अगर आंसर्स नहीं है तो उन्हें भी आंसर मिल जाएंगे। तो मेरा चैनल का जो लिंक है शेयर करो, सारे वीडियोस उन्हें शेयर करो। और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार मेरा वीडियो चैनल देख रहे हो, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि मैं सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपलोड करती हूँ। आंसर्स क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आंसर सब अपलोड करती हूँ, प्लस मैथ्स के मैं डिटेल में सॉल्यूशन देती हूँ। तो आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स के एक ही जगह पर राजश्री चौहान क्लासेस में आंसर्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिए हैं, आप वो लिंक भी ज़रूर देखिए, और वो चैनल को भी आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।